In this video number 17, we will study how the exchange of gases takes place. We know that the breathing is the main process of the respiration in which the gases exchange takes place. First of all, the ribs will move outward, diaphragm move towards the lower side, and as a result of which the volume of the thoracic cavity increases, and as a result of which the air which is present in the environment or atmosphere, its pressure increases, and as a result of which the gases are get entered in our thoracic cavity through the respiratory passage, and this is known as the inhalation. On the other hand, when the ribs are get contracted, diaphragm move towards the upper side, as at that time the volume of the thoracic cavity reduces, and the air which is present in the respiratory passage is or in the lungs is get pulled in the upward direction, and it is get removed from the our body. In this way, the inhalation and the exhalation takes place, which is known as the breathing. Inhalation is the entering of air or intake of air from environment to the lungs through the respiratory passage is known as the inhalation, and exhalation is the removal of the gases from the lungs through the respiratory passage to the environment or atmosphere is known as the exhalation. जैसा कि हमें मालूम है कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो रहती है वह श्वसन की मुख्य प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत गैसों का विनिमय होता है। सबसे पहले जो पसलियाँ रहती हैं वह बाहर की ओर फैल जाती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर झुक जाता है, जिसकी वजह से वक्षी गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्षी गुहा का आयतन बढ़ेगा तो दाब कम होगा। इस वजह से बाहर वायुमंडल में उपस्थित जो वायु है उसका दाब अधिक होने से वह हमारे श्वसन मार्ग से होती हुई फेफड़ों में आ जाती है। इस क्रिया को इनहेलेशन या अंतर्ग्रहण कहा जाता है। उसके दूसरे पद में जब पसलियाँ अंदर की ओर संकुचित होती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर वापस शिथिल अवस्था में आ जाता है, इस समय थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा का आयतन कम होता है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों के अंदर भरी हुई वायु श्वसन मार्ग से होती हुई बाहर निकाल दी जाती है और इस क्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वायु के अंतर्ग्रहण की क्रिया जिसे निःश्वसन या इनहेलेशन कहा जाता है, जबकि वायु के निष्कासन की क्रिया को निःश्वसन या एक्सहेलेशन कहा जाता है। We had studied the breathing involves two steps. One is the inhalation and the second one is the exhalation. Through this, the gases exchange takes place through our respiratory organ and the respiratory passages. And now the question arises, as we know that the oxygen gas is inhaled and the carbon dioxide gas is exhaled, that how these gases are get entered in our body and they are get removed from our body. We know that the blood is a connective tissue which is present in our blood vessels. This blood contains a red colored pigment which is known as the red blood corpuscles. In this red blood corpuscle, a red pigment is present which is known as the hemoglobin. It is a protein which is made up of the iron and the globin, therefore it is known as the hemoglobin. This hemoglobin is having the great affinity towards oxygen. Therefore, whenever it comes in contact with the high concentration of the oxygen, it immediately absorbs oxygen by the process of diffusion. And in this way, the oxygen joined with the hemoglobin and it forms oxyhemoglobin. Through the bloodstream, this oxyhemoglobin reaches to each and every cell of our body, where through the process of diffusion, this oxygen gas is diffused in each and every cell. In turn, this oxygen gas is used up in the process of cellular respiration, in which the oxidation of the food material takes place, and as a result of which carbon dioxide is produced. This carbon dioxide is
not useful for our body. Therefore, retention of this carbon dioxide may lead an harmful effect on our body. Therefore, this carbon dioxide will get diffused out from cell to the bloodstream. It will join with the hemoglobin and it form carboxyhemoglobin. Through the blood vessel, it will be carried out to the surface of the lungs where it is get diffused out. And when the inhalation and the exhalation takes place, this oxygen gas is inhaled and the carbon dioxide gas is exhaled. जैसा कि हमें मालूम है कि गैसीय विनिमय जो होता है उसके अंदर दो पद होते हैं, एक होता है निःश्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन। निःश्वसन के अंदर ऑक्सीजन गैस फेफड़ों के द्वारा ग्रहण की जाती है और निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में निष्कासित की जाती है फेफड़ों के और श्वसन मार्ग के द्वारा। तब प्रश्न यह उठता है कि जो निःश्वसन और निःश्वसन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस कैसे हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से हमारे शरीर के बाहर निष्कासित हो रही है। तो हम जैसा कि पहले 9th कक्षा जैसा कि हम जानते हैं कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, एक होती है निःश्वसन और दूसरी होती है निःश्वसन, जिसके द्वारा गैसों का विनिमय वायुमंडल से शरीर के अंदर और शरीर से वायुमंडल में किया जाता है। तब प्रश्न ये उठता है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो किस प्रकार ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। जैसा कि हमें मालूम है कि रक्त एक प्रकार का तरल उत्तक होता है जिसके अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन लौह तत्व और एक प्रोटीन जिसे ग्लोबिन कहते हैं दोनों से मिलकर बना होता है और इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो रहता है ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता प्रदर्शित करता है और जब कभी भी ऑक्सीजन की सांद्रता से अधिक मिलती है तो ये तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता रहती है वो रक्त केशिकाओं में उपस्थित रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाती है। ये रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाता है। वहाँ पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन गैस कोशिका के अंदर विसरित कर दी जाती है जिसका उपयोग श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है जो कि कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए अनुपयोगी होती है और यदि ये शरीर में रह जाए तो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव दर्शाती है, इसलिए इसका निष्कासन शरीर से होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो कोशिका के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से रक्त में विसरण की क्रिया के द्वारा प्रसारित होती है। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त जो है वो फेफड़ों की सतह पर आता है और निःश्वसन की क्रिया के दौरान वो फेफड़ों के अंदर विसरित हो जाता है और इस प्रकार निःश्वसन के क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर ग्रहण की जाती है और निःश्वसन के दौरान शरीर के बाहर निष्कासित की जाती है। इस प्रकार से शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो शरीर के विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होती है।